Hello everyone, my name is Nihal Ansari and I am here a software trainer at VKR Technical Institute, Lakshmi Nagar. So in previous classes we have finished introduction and fundamentals like variables, operators, format specifier, and then we have also finished conditional statements and loops. And I have also give you a brief idea about nested loops. So today I'm going to teach you about application of nested loops. So the nested loops is used in displaying patterns. Uh, the patterns like numbers, digits, and then we stars like star pattern, and then letters in a different arrangement. And nested loop is also used in displaying arrays, which we are going to study further. Now let's focus on nested loops in displaying patterns. So we know that nested loops contain outer loop and inner loop, and its syntax looks like this. Like we have for, then in bracket we have condition, then in the bracket. So before starting of the body for first loop, we have started the second loop. So this is the second loop, and then this is the body of inner loop, and then we close it. Then we write body of outer loop, and then we will close it. The outer loop will close. So this is looks like a nested loop which contains outer loop and inner loop. Now let's move ahead. Now using nested loop, we have to display pattern. And pattern first first is a star pattern, star pattern, and the second one is the number pattern, the integer numbers pattern, and it is also a number pattern but in a different way. So I will tell you how to show it. Now let's move to further. So in in the working of this loop, लेट्स अंडरस्टैंड, पहले समझते हैं कि ये लूप्स काम कैसे करते हैं। तो हमें, अगर आप देख सकते हो, तो हमें इन लूप्स में क्या काम करना है। पहले तो हमें इन वेरिएबल्स जैसे स्टार है यहाँ पे ये प्रिंट करने हैं, यहाँ पे नंबर्स, एंड एक और काम करना है कि हमें नई लाइंस भी प्रिंट करनी है, हमें नई लाइन पे जाना है। सो वी हैव टू डिस्प्ले टू थिंग्स. So we have to display two things. I have already told you, that is new line and variable. So new line can be achieved by escape sequence. So this is just basically a escape sequence. So this is an escape sequence, and variable can be displayed like star, like this star. Sorry. So variables can be displayed like star. Here the variable are having integer data type, values from 1 to 5 as we used in loops, and this is a C 1 to 5. ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें वर्क करनी है। अब हम इस पे कैसे करते हैं, ठीक है, वो भी हम अ, आगे ही पढ़ेंगे जब मैं आपको पैटर्न बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर आपको न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस प्रिंट करना है, जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में देखा, जैसे आपको ये न्यू लाइंस हैं 4 और 5, ये न्यू लाइंस हैं। इसके लिए हम एक आउटर लूप का यूज कहते हैं, और उस वेरिएबल को हम नेम दे देते हैं आर। मैंने अपने हिसाब से आर दिया है, आप आई दे दें, जे दे दें, जो भी आपका मन करे, ए दे दें। मैंने यहाँ पे आर दिया है। तो ये आउटर लूप आर है। इसकी by following this we can print new line, and we can also print variable like star 1 2 and the numbers digits थ्रू इनर लूप। और उसको मैंने सी बोल दिया है, इनर लूप को मैंने सी बोल दिया है। आप जे ले लें, बी ले लें, जो भी आपकी मर्जी है वो ले लें, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर इनको ये ले लिया है। नाउ अब हमारे पास बहुत सारी थ्योरी हो गई। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल। तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम टू प्रिंट
स्टार पैटर्न। ठीक, तो हमें एक प्रोग्राम ये बनाना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को लिखना। तो हमें वही करना है जो हम अब तक करते आए थे। हमारी हेडर फाइल stdio.h विच इज़ फॉर इनपुट एंड आउटपुट, जो भी हम पहले फॉलो करते थे वो करेंगे। int मेन, हम मेन प्रोग्राम पे गए। अब हम यूजर से पूछ लेते हैं कि वो कितनी एरोज प्रिंट कराना चाहता है। एंटर द नंबर ऑफ रोज, कि आप कितनी एंटर प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हमने ये यूजर से पूछ लिया, इसको हमने एंड किया और स्कैनफ से हमने यूजर से इनपुट ले लिया थ्रू फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि हम इंटीजर डिक्लेयर करने वाले हैं तो हम वैल्यूज लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे एक int इंटीजर डेटा टाइप का कोई वेरिएबल लेना है जिसकी हमने वैल्यू n रख दी है। ठीक है, तो हमने इसे n के एड्रेस में सेव कर लिया। जो भी सिंटेक्स प्रॉपर था हमने उसे फॉलो कर लिया। अब हम लूप्स में आ जाते हैं, प्रिंट करना शुरू करते हैं। हम यहाँ पे भी एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं। आउटर लूप है पहले, तो आउटर r इज इक्वल्स टू 1। हम इससे पहले लिख लेते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ आउटर लूप, ये हमारा आउटर लूप शुरू हुआ और यहाँ पे हमने r इज इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज कर ली। ठीक है, लूप में 3 कंडीशन, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन एंड टर्मिनेशन, वो हमें फॉलो करना है। फिर हमारी टर्मिनेशन कहाँ से है, n, जिसकी वैल्यू हमें यूजर देगा, रोज की वैल्यू, एंड r प्लस प्लस, ये हमने वैल्यूज कर ली। और उसके बाद हम इस लूप में एंटर हुए। अभी हमने आउटर लूप की बॉडी नहीं लिखी है, उससे पहले ही हमें एक और लूप स्टार्ट करना है, वो है इनर लूप। तो int इनर लूप में मैंने कहा था कि आप, उससे पहले हम मेंशन कर देते हैं स्टार्टिंग ऑफ इनर लूप। इनर लूप हमारा शुरू हो गया, इनर नेस्टेड लूप शुरू हो गया। और हम इस इनर लूप को लिखते हैं फॉर int, हम वेरिएबल c ले लेते हैं इनर लूप के लिए। आप कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल अपने हिसाब से, और यहाँ पे भी हमने n कर दिया, इसकी वैल्यू भी n के हिसाब से होगी। और उसके बाद अब हमने यहाँ पर लिखना है बॉडी ऑफ इनर लूप। पहले इनर लूप की बॉडी आएगी, इनर लूप में हमें क्या प्रिंट करना है। तो हमने पहले, हम स्टार करना चाहते हैं प्रिंट, हमने स्टार कर दिया। ठीक है, हमने स्टार यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब हमने इनर लूप को फिनिश कर दिया। उसके बाद अब हम आते हैं बॉडी ऑफ आउटर लूप। ठीक है, आउटर लूप में मैंने बताया था इनर लूप के लिए आप स्टार प्रिंट करेंगे और आउटर लूप के लिए आप नई नई लाइन पर जाएंगे। सो आप इस तरह से न्यू लाइन पे आपने प्रिंट कर दिया और यहाँ पे हमारा ये खत्म हो गया। अब हमें रिटर्न 0, क्योंकि हमने int मेन चुना है, तो इसके सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए रिटर्न। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड रन। सो हमारा कुछ एरर आ रहा है, प्रिंट वी हैव टू फॉलो द करेक्ट सिंटेक्स। अब हम देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, हमारा आ गया int, हमारा आ गया int नंबर ऑफ रोज हमें प्रिंट करना है। हमने सपोज करो 5 रोज ले लिए, तो यहाँ पे हम रोज की वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। सपोज करो मैंने 5 रोज ले लिए हैं और अब दोनों लूप्स अब के इसके बेसिस पे चलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा स्टार इस तरीके से आया है जो हम करना चाहते थे, यानी हम ये स्टार अचीव करना चाहते थे, तो हमने ये अचीव कर लिया है। अब हम दूसरे पैटर्न पे आते हैं, नंबर पैटर्न। ठीक है, तो हम नंबर पैटर्न पे आते हैं और हम यहाँ पे स्टार की जगह पे सिर्फ वैल्यू प्रिंट करेंगे करेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ। और सपोज करो कि मैं जो पैटर्न प्रिंट करना चाहता हूँ 1 2 3 4 5, हम यहाँ पे जे की वैल्यू ले लेते हैं। सॉरी, हमारा इनर लूप जे नहीं है, सी है, तो हम सी की वैल्यू लेंगे। और अब हम इसको एग्जीक्यूट कर, जब हमने एग्जीक्यूट किया तो इन्होंने पूछा एंटर द नंबर ऑफ रोज, तो हम 5 ले लेते हैं अर्लियर की तरह 5, और देखते हैं क्या पैटर्न आता है। तो हमने देखा कि आ गया 1 2 3 4 5, जो हम सेकंड वाला पैटर्न करना चाहते थे। 1 2 3 4 5 लाइंस में इस तरह का पैटर्न आ गया। ठीक है, अब हम थर्ड पैटर्न बनाना चाहते हैं इसी में, इस तरीके का। तो
वो कैसे करते हैं, यहाँ पे हम बस आउटर लूप जो है आर की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो जब हमने एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास आया एंटर द नंबर ऑफ रोज अर्लियर की तरह, और हमने फिर यहाँ पे डाल दिया जो हम डालते आए अब तक, 5 रोज हम करना चाहते हैं तो हमने डाल दिया, और हमारा जो पैटर्न आया इस तरीके का 1 1 2 2 3 3, इस तरीके का जो हम इसमें चाहते थे कि इस तरीके का पैटर्न हमारा बन के आ गया। तो हमने अभी तीनों पैटर्न प्रिंट कर लिए हैं सिंपल से प्रोग्राम से। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इस तरीके से वैल्यूज क्यों आएंगे। सो लेट्स मूव अहेड। तो ये लूप काम कैसे करता है ये हम बताते हैं, ठीक है। हाउ गिवन लूप वर्क। सो जैसे मैंने आपको नेस्टेड लूप जब समझाया था, तब मैंने बोला था कि आप एक वॉल क्लॉक का एग्जांपल समझ सकते हैं। तो ये आपका हैंड, ये आपकी हैंड आवर एंड है, तो ये आपका आवर एंड है, ये आपका मिनट हैंड है, और ये, और नीचे आपका सेकंड हैंड, ठीक है। जब सेकंड हैंड अपना पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है तो आपका मिनट हैंड एक आगे मूव करता है, ठीक है। कैसे मैं अभी शो करता हूँ, तो आपका जो मिनट हैंड है वो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है। जब आपका सेकंड हैंड आपका 60 राउंड्स यानी 60 सेकंड्स कंप्लीट करता है तो आपका 1 मिनट आगे बढ़ता है, फिर 60 सेकंड करेगा तो 1 मिनट आगे बढ़ेगा। उसी तरह से जब आपका मिनट एंड मूव करता है तो आवर एंड आगे बढ़ता है, एंड फिर एक जब वो 60 राउंड्स कंप्लीट करता है यानी 60 मिनट्स कंप्लीट करता है तो आपका आवर एंड आगे बढ़ता है। इस तरीके से आपका क्लॉक काम करता है। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में आउटर लूप की वैल्यू आपने इस प्रोग्राम में, अगर आप प्रोग्राम देखें तो आपने कहाँ से स्पेसिफाई की है, r=1। पहले आपने यूजर से रोज पूछ लिए, मान लो यूजर ने 5 रोज एंटर किए हैं, 5 रोज, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो इसके बेसिस पे चल रहा है, ठीक है। आउटर लूप में हमारी वैल्यू है r, ठीक है, जो स्पेसिफाई हो रही है, ठीक है। r=1 से, और ये चेक होगा क्या 1 की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू n विच इज 5, क्या 5 है, ठीक है। ये चेक होगा, यस इट्स ट्रू, ये आपका ट्रू है, तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा। और r प्लस प्लस से आपका क्या होगा, r=r+1 यानी 1+1=2, तो r की वैल्यू 2 हो जाएगी नेक्स्ट आइटरेशन के लिए। जैसे ही ये ट्रू होगा हम इनर लूप के अंदर पहुंचेंगे और हमारे वहां पे c की वैल्यू 1 है, जो भी चेक होगा क्या 1 की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू n विच इज 5, जो हमने एंटर किया है, तो ये ट्रू है क्योंकि 1 लेस देन 5 है, इसमें से एक कंडीशन ट्रू है। फिर ये यानी ये एग्जीक्यूट करेगा। अब इसके अंदर एक बॉडी है जिसमें हमने क्या किया हुआ है, स्टार। पहले वाले पैटर्न के लिए मैं बता दूं तो पहला वाला पैटर्न हमने स्टार प्रिंट किया है, तो हमारा जो आउटपुट रहेगा, अगर मैं यहाँ पे आउटपुट शो करूं, ये फर्स्ट लाइन है और इसमें हमारा आउटपुट इस तरीके से रहेगा, स्टार शो होगा। अब ये लूप यहाँ पे एंड नहीं होगा क्योंकि सी की हमने वैल्यू करी है C++, जो कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसका मतलब C=C+1। यहाँ पे हम नए C को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। पुरानी वैल्यू जो है C=C+1। अब ये चेक होगा विच इज 1 है पहले वैल्यू, फिर 1, तो C की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये लूप यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा। और अब C की वैल्यू जो होगी वो नई वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, दैट इज C=2, और चेक होगा क्या 2 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, यस ये ट्रू है, ठीक है। तो हमारा फिर से एक स्टार प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर C++ है, ठीक है, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। और फिर से अब हमारे पास नई C की वैल्यू क्या है, 2, जो हमने, सो 2+1 3, ठीक है। सी की नई सी की वैल्यू आपकी 3 आ गई है। अब हमारे पास जो नई सी की वैल्यू है वो प्रिंट होगी, दैट इज C=3, और 3 लेस देन इज इक्वल टू 5 क्या ट्रू है, यस 3 लेस देन 5 है, इसमें से एक कंडीशन ट्रू है, तो फिर से हमारा एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद C++ फिर से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और हमारा C=C+1, हमारी C की नई वैल्यू असाइन होगी, दैट इज 3+1, C की वैल्यू 4 असाइन होगी। अब हमारी नई वैल्यू चलेगी। सो ये इस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। हम कह सकते हैं इसको इस तरह बना सकते हैं कि ये काम कर रहा है एक लूप की तरह, ठीक है। तो उसके बाद हमारी C की नई वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। 4 देखेंगे, C=4, क्या 4 की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 5 है, यस इट्स ट्रू, लेस देन है, एक कंडीशन भी ट्रू है, हमारा एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा,
ठीक है। और फिर से असाइनमेंट होगा नई वैल्यू सी प्लस प्लस, तो c इज इक्वल्स टू सी प्लस वन, और इस बार हमारी c की वैल्यू अपडेट फिर से होगी, दैट इज 4 प्लस 1 इज 5। अब हमारे पास नई c की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो हम उसको करते हैं, तो c इज इक्वल्स टू 5 और चेक होगा क्या 5 लेस देन इज इक्वल टू 5। इस बार 5 लेस देन नहीं है, अर्लियर केसेस की तरह इक्वल टू है, एक कंडीशन ट्रू है यानी ये ट्रू है। ठीक है, तो लूप हमारा एक बार और एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे 5 हमारे जो स्टार है प्रिंट हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, c इज इक्वल्स टू सी प्लस वन, नई वैल्यूज को अपडेट करेंगे, दैट इज पुरानी वैल्यू 5 है, नई वैल्यू 5 प्लस 1 6। अब हमारे पास नई c की वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, c इज इक्वल्स टू 6 और फिर चेक होगा क्या हमारा 6 की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 5 है, ना तो 6 लेस देन है ना इक्वल है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब कोई भी हमारा स्टार जो होगा, कोई भी हमारा जो स्टार है वो प्रिंट नहीं होगा ये, और ना ही कोई वैल्यू अपडेट होगी। ठीक है, और उसके बाद जो भी हमारा आउटर लूप में था, आउटर लूप में हमने पहले भी कहा था कि आउटर लूप में हम क्या कर रहे हैं, नई लाइन को प्रिंट कर रहे हैं, इनर लूप में हम स्टार को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आउटर लूप में जब हम नई लाइन को प्रिंट करेंगे तो हम लोग आ गए नई लाइन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे नई वैल्यू r के लिए 2 हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे जो नई वैल्यू है वो r के लिए ट्रू हो चुकी है, तो अभी हम उसको अपडेट करेंगे। ठीक है, तो r की वैल्यू यहाँ पे, r की वैल्यू नई वैल्यू ट्रू है और हम चेक करेंगे क्या ये राइट होता है, नहीं। ठीक है, सो r की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 लेस देन इज इक्वल टू 5, यस लेस देन है, इक्वल नहीं है, एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हम इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं, जैसे मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर में बताया था। फिर आपका r प्लस प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी r को नई वैल्यू मिलेगी, तो r की पुरानी वैल्यू 2 है प्लस 1, r इज इक्वल टू 3 फॉर नेक्स्ट आइटरेशन। अब ये लूप हमारा क्योंकि वर्क कर रहा है तो हम इनर लूप में फिर से एंटर करेंगे। अब यहाँ पे फिर से c को, क्योंकि c को इक्वल टू 1 है तो c की वैल्यू फिर से 1 असाइन होगी और फिर से वही कंडीशन चेक होगी क्या 1 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, हाँ ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, उसके बाद हमारा असाइनमेंट से ट्रू है, इसका मतलब हमारा जो भी प्रिंट है, जो स्टार हम प्रिंट करना चाह रहे हैं वो होगा। और यहाँ पे फिर से c प्लस प्लस, दैट इज c इज इक्वल टू सी प्लस वन, नई c की वैल्यू असाइन होगी, पहले 1 है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस तरह से फिर से वैल्यू असाइन होगी c प्लस 2, और फिर हमारी फिर से c की नई वैल्यू हमारी 2 आ चुकी है, c की वैल्यू हमारे पास हो गई है 2। ठीक है, और हम नई वैल्यू को असाइन करेंगे, c इज इक्वल टू 10, 2 लेस देन इज इक्वल टू 5, c प्लस प्लस असाइनमेंट, c इज इक्वल टू नई वैल्यू 2 प्लस 1 और c की नई वैल्यू 3 होगी और एक और स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, फिर हमारे इसी तरह से अपडेशन वैल्यू c की नई वैल्यू 3 आएगी। सिमिलरली हम यहाँ पर भी 5 स्टार c इज इक्वल टू 6 पे हम फॉल्स हो जाएंगे, इसी तरह से प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, ये c इज इक्वल टू 6 पे लूप फॉल्स हो जाएगा और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद आउटर लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज न्यू लाइन। तो हम नई लाइन पे आ जाएंगे, लाइन नंबर 3। नाउ यहाँ पे फिर से r की वैल्यू हमने 3 कैलकुलेट की है फॉर नेक्स्ट आइटरेशन, तो हम यहाँ पे फिर से r की वैल्यू को r की वैल्यू को 3, r की वैल्यू को हम यहाँ पे 3 करेंगे, 3 लेस देन इज इक्वल टू 5, 3 लेस देन है, ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, और फिर से r इज इक्वल टू r प्लस 1, तो इस बार यहाँ पे वैल्यू जो है वो 3 है और अपडेट होगी 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, और इनर लूप फिर से काम करेगा और हम इस तरीके से फिर से एक स्टार को प्रिंट कर देंगे। फिर फोर्थ में हम इस स्टार को प्रिंट कर देंगे एंड देन फिफ्थ में हम जब स्टार फिर से इस स्टार को प्रिंट कर देंगे। एंड नाउ हम आउटर लूप में जब वैल्यू देखते हैं कि r की वैल्यू जो हो जाती है वो नीचे, हम जब करते हैं तो r की वैल्यू 5 अपडेट करते हैं नेक्स्ट आइटरेशन के लिए, 5 प्लस 1 6। जब यहाँ पे r की वैल्यू 6 हो गई तो चेक होगा क्या 6 लेस देन इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, 6 जो है ना तो लेस देन है ना इक्वल टू है, तो ये केस फॉल्स हो गया और हम आउटर लूप से भी बाहर आ जाएंगे और हमारा इस तरीके का कुछ पैटर्न प्रिंट हो जाएगा।
सो इस तरीके से लूप में काम किया है। यहाँ पे इनर लूप की वैल्यू पहले पूरी 1 से 5 चल रही है, पहले आउटर लूप चेक हो रहा है r इक्वल टू 1 के लिए, और फिर वो ट्रू होता है तो हम इनर लूप पे जाते हैं, और इनर लूप में पूरा जो c इज इक्वल टू 1 से c इज इक्वल टू 5 पूरी वैल्यू चलती है, उसके बाद फिर से हम आउटर लूप में जाते हैं। तो ये एक क्लॉक की तरह काम कर रहा है, जहां पर सेकेंड हैंड आप करते थे, सेकेंड हैंड अपना पूरा रोटेशन कंप्लीट करता था, फिर मिनट हैंड आगे बढ़ता था, फिर सेकेंड हैंड करता था, फिर 1 मिनट आगे बढ़ता था, और दोबारा से सेकेंड हैंड अपनी इनिशियलाइज वैल्यू 1 सेकेंड से शुरू होता था और नेक्स्ट मिनट के लिए। सेम जब आपका 1 मिनट कंप्लीट करता था पूरा, जो 6 मिनट था वो 60 मिनट्स कंप्लीट करता था, तो आपका 1 आवर होता था, 1 आगे बढ़ता था, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए फिर से 60 मिनट्स और नेक्स्ट 2 आवर होता था, और मिनट हैंड फिर से अपनी इनिशियलाइज वैल्यू यानी 1 मिनट से शुरू होता था। सो ये एक हम तरीके का नेस्टेड लूप कह सकते हैं, फॉर इट्स अ रियल लाइफ एग्जांपल, एंड दैट्स हाउ आउटर लूप एंड इनर लूप वर्क्स, and that's how this whole we can print those patterns. Now move ahead. अब हम इसमें एक कंक्लूजन दे सकते हैं। वो कंक्लूजन क्या है, हम देख पा रहे हैं, एक कंक्लूजन से पहले हम एक बात करना चाहेंगे। कंक्लूजन से पहले, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे अभी स्टार प्रिंट किया था। अगर हम चाहें, अगर हम इनर लूप के अंदर, इनर लूप के बाद हम वैल्यूज प्रिंट करते हैं, ठीक है, पहले हम आउटर इनर लूप की वैल्यू प्रिंट करते हैं, दैट इज आई, सॉरी, इनर लूप की वैल्यू हमारे केस में सी है, तो हम सी प्रिंट करना चाहते हैं, इनर लूप है, इनर लूप की वैल्यू सी है, तो ये इनर लूप, इसे हमने वैल्यू कहा है, ठीक है। जब हम इनर लूप की वैल्यू को देख सकते हैं, जब r इक्वल टू 1 था तो उसके लिए हमारा लूप वर्क किया, और c इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक चला, हमने यूजर ने अगर 5 रोज सेलेक्ट किए हैं, तो इनर लूप यहाँ पे c इज इक्वल टू 1 to 5 चला फॉर r इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, और इस तरीके से काम किया। तो अगर हम यहाँ पे स्टार की जगह हम वैल्यू अगर सी प्रिंट करा रहे हैं, तो r इज इक्वल टू 1 के लिए पहली सी की वैल्यू 1 रहती है, हमने देखा c इक्वल टू 1, फिर अपडेट होता है c इज इक्वल टू 2, फिर c इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 6 फॉल्स हो जाता है, हम लूप से ब्रेक कर जाते हैं और नई लाइन को, एस्केप सीक्वेंस को प्रिंट करते हैं। फिर नेक्स्ट r इज इक्वल टू 2 चलता है, फिर ये चेक होता है, जब ये ट्रू रहता है तो फिर हम अंदर फिर से आ जाते हैं और फिर से शुरू करते हैं c इज इक्वल टू 1 से। तो यहाँ पे फिर से 1, आपका 1 आ जाता है, फिर आपका 2 आ जाता है, फिर आपका 3 आ जाता है, और फिर यहाँ पे c इज इक्वल टू 1, फिर से 2, 3, 4, 5, फिर ब्रेक करते हैं, r इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट होता है लूप, और फिर से यहाँ पे इनर लूप में हम अंदर आते हैं, तो c इज इक्वल टू फिर से 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि हम यहाँ पे इनर लूप की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, और ये भी पैटर्न 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट जो पैटर्न था, ये c इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ये भी हमारा प्रिंट हो गया। अब हम तीसरे पैटर्न पे आते हैं, तीसरे पैटर्न को कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इनर लूप की वैल्यू ना करके, c की वैल्यू ना करके, हम लोग आउटर लूप, आउटर लूप की वैल्यू प्रिंट करते हैं, दैट इज r, आउटर लूप की ये वैल्यू है, ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं r। हम देख पा रहे हैं, ठीक है, हमने किया r इज इक्वल टू 1 से लूप शुरू हो रहा है और चेक हो रहा है क्या 1 लेस देन इज इक्वल टू 5 जो यूजर ने एंटर किया था वो ट्रू रहता है। हम फिर से यहाँ पे अंदर आते हैं और c इज इक्वल टू 1 से 1, r की वैल्यू 1 होती है और c की यहाँ पे ट्रू रहती है, कंडीशन ट्रू रहती है, 1 लेस देन इज इक्वल टू 5। फिर हम c यहाँ से स्टार्ट करते हैं, c इज इक्वल टू 1 से 5, ठीक है, ये कंडीशन हमारी ट्रू रहती है, ठीक है, और ये एग्जीक्यूट करता है, c इज इक्वल टू 6 पे फॉल्स हो जाता है। हम वापस से चले जाते हैं नेक्स्ट r इज इक्वल टू, ठीक है, 2 के लिए। तो इस बार अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं r की वैल्यू, तो हमारा आउटपुट आएगा जब r इक्वल टू 1 ट्रू है, तो c इज इक्वल टू 1 to 5 चल रहा है और हर बार हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं r की, लेकिन यहाँ पे r की वैल्यू तो 1 ही रह रही है, यहाँ पे r की वैल्यू तो 1 है, जो c इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 5, तो पहली वैल्यू 1 प्रिंट होगी r की, सेकंड टाइम में भी r की वैल्यू 1 है, फिर थर्ड टाइम पे भी, फोर्थ टाइम पे भी, 5 टाइम पे भी, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट नाइट्रेशन होता है, ठीक है, और r इज इक्वल टू 2 चलता है हमारा, ठीक है, और फिर ये देखते हैं कि क्या कंडीशन ट्रू रहती है,
तो हम देख पा रहे हैं कि 2 की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 5 है, ये ट्रू है। और फिर से c इज इक्वल टू 1 to 5 ट्रू रहता है, ठीक है। और हम r की वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे 2 है। तो हर बार जब भी हम r की वैल्यू को प्रिंट करेंगे लाउटर लूप, तो 2 2 2 ये इस तरीके से आएगा। फिर नेक्स्ट जाते हैं, अब हमारे पास r की वैल्यू हो जाती है 3। और इस बार फिर से देखते हैं क्या 3 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, यस ये ट्रू है। और फिर से यहाँ पे c इज इक्वल्स टू 1 to 5 लूप चलता है, जहां पर इस समय हमारे पास r की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे पूरा 3 3 3 3 3 इस तरीके से प्रिंट होता है। नेक्स्ट में 4, सिमिलरली 4 4 4, फिर नेक्स्ट में 5 5 5 5 इस तरीके से प्रिंट होगा। सो इस तरीके से ये लूप काम करता है। हमें जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5, जहाँ पे एक में वैल्यू सेम रहती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अब हम इसी के बारे में कंक्लूजन के बारे में बात करने वाले थे, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम कंक्लूजन देते हैं कि जब हमें 1 1 1 यानी हॉरिजॉन्टल वैल्यू, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वैल्यू रोज है तो उसको सेम रखना है, उसको आइडेंटिकल रखना है। हॉरिजॉन्टल वैल्यूज को अगर आइडेंटिकल रखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आउटर लूप आर की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, ठीक है, इसको हम प्रिंट करेंगे, आउटर वैल्यू को प्रिंट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें सेकंड केस हमें हम बात करते हैं, जब हमें 1 2 3 इस तरीके का पैटर्न प्रिंट करना है, जहां पर आप देख पा रहे हो कि वर्टिकल यानी वर्टिकल वैल्यूज सेम है। यहाँ पे तो आपकी हॉरिजॉन्टल वैल्यूज आप देख पा रहे हो कि सेम है, आइडेंटिकल है। जबकि जबकि हमारी दूसरे केस में यहाँ पे दूसरे केस में हमारी ये वर्टिकल वैल्यू सेम है, दैट इज वर्टिकल वैल्यू जो कि जिन्हें हम कॉलम्स कहते हैं वो हमारी क्या है, आइडेंटिकल है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इनर लूप यानी जो इसकी वैल्यू सी है उसको प्रिंट करना पड़ेगा। सो ये कंक्लूजन कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है, रोज जिन्हें हम कहते हैं, वो आइडेंटिकल प्रिंट करना है तो आउटर लूप आर की वैल्यू प्रिंट करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही हमें अगर वर्टिकल वैल्यूज यानी कॉलम्स हैं उनको अगर आइडेंटिकल रखना है तो हमें इनर लूप सी की वैल्यू प्रिंट करेगी। ये इसका कंक्लूजन है, इस तरीके के पैटर्न, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब हमें प्रिंट करने हैं लेटर्स को, कुछ इस तरीके का पैटर्न जो है बनाना है, ठीक है। तो हमें इस तरीके का पैटर्न कुछ चाहिए, तो हमें क्या करना है, पैटर्न लाइंस को यानी लेटर्स को प्रिंट करना है। तो ये जो पैटर्न है वो इस तरीके का, ए पहला पैटर्न है, फिर स्मॉल लेटर्स में है, फिर ये ए बी सी डी इस तरीके का है, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे वर्टिकल में वैल्यूज सेम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके वर्टिकल में वैल्यूज डिफरेंट है, हॉरिजॉन्टल में सेम है, तो हम सेम सेम काम करते हैं, ठीक है। बस जब हमें लेटर्स को प्रिंट करना होता है, तो हम अगर कैपिटल लेटर्स को प्रिंट करना है तो हमें वेरिएबल वैल्यू प्रिंट करनी है, उस पर 64 कर देते हैं। स्मॉल लेटर्स को प्रिंट करना है तो हम वेरिएबल पे 96 प्रिंट करते हैं। ये इसका लॉजिक है। इस तरीके से कंपाइलर में हमारे कोड सेम है फॉर लेटर्स और इनको हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको सेम, हमारे पास प्रोग्राम सेम है, इसी प्रोग्राम में हम लोग बस क्या करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बस चीजें हम लोग सेम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि हम करेक्टर्स करने वाले हैं लेटर्स, तो हम यहाँ पे लगाते हैं R+96, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कैपिटल लेटर्स करने हैं तो हम R+64 करते हैं, ठीक है। इस पैटर्न में आप देख सकते हैं कैपिटल लेटर्स में वेरिएबल +64 है। अब हम R यानी जो आउटर लूप है उसको प्रिंट कर रहे हैं और फिर देखते हैं एग्जीक्यूट करके क्या होता है, ठीक है। तो वो हमसे नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ रोज डालते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट हमारा आता है। तो हमने यहाँ पे रोज डाले 5 जो हम अब तक डालते हैं, और हमने देखा कि कुछ इस तरीके का पैटर्न आ रहा है जो कि काफी आपका इससे सिमिलर है जिसमें हम प्रिंट करना चाह रहे थे। यहाँ पे सेम AABB, जहाँ पे हम लोग वर्टिकल यानी रोज में हम सेम लेटर्स रखना चाह रहे थे, तो वो हमारा वही पैटर्न आया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से हम अपने कंपाइलर की तरफ जाते हैं, ठीक है। और इस बार हमें स्मॉल लेटर्स में वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैंने बताया था कि स्मॉल लेटर्स में आप कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। R प्लस वेरिएबल +96 प्रिंट करते हैं और देखते हैं हमारा क्या पैटर्न आता है।
सो हमने ये प्रिंट किया और फिर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो हम 5 नंबर ऑफ रोज डालते हैं, जो अब तक हम करते आए 5। ठीक है, आप देखते हैं क्या रिजल्ट हमारा आता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि स्मॉल लेटर्स में हमारा प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो यानी हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो ए बी बी सी से इस तरीके का कुछ पैटर्न प्रिंट हुआ है। हमने लॉजिक सेम रखा है जो पहले प्रोग्राम में रखा था। ठीक है, अब हम फिर से अपने कंपाइलर की तरफ जाते हैं। ठीक है, इस बार हम आउटर लूप आर की वैल्यू ना करके सी पे करते हैं। पहले हम कैपिटल लेटर्स में करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। नंबर ऑफ रोज को हम एंटर करते हैं, हमने 5 रोज एंटर किए और अब आप देख सकते हैं कि आपका पैटर्न कुछ इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, यानी ये जो हमारा थर्ड पैटर्न है जिसमें हमने बताया था आपको ABC, इस तरीके का पैटर्न आ रहा है जहाँ पे आपके कॉलम्स में सेम वैल्यू रह रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने क्या किया है, इनर लूप को प्रिंट किया है, सी वैल्यू दी है। अब इसी इसी को हम इसी प्रोग्राम में हम बस स्मॉल लेटर्स चाहते हैं, तो C+96 कर दिए। ठीक है, और अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। हमने रोज हमने रोज की वैल्यू को 5 फिर से रखा, एंड देन हमारे पास कुछ इस तरीके का पैटर्न है सिमिलर, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल ए है। ठीक है, जब हमने किया तो स्मॉल ए कॉलम्स में सेम है, ऐसे भी कॉलम्स में सेम है, तो हमने वही पुराने उसको फॉलो किया, इनर लूप और आउटर लूप की वैल्यूज को प्रिंट कराया है। ठीक है, और हमने डिफरेंट रिजल्ट्स कैरी किए। ठीक है, सो इस तरीके का प्रोग्राम बना सकते हैं, तरफ करते हैं। ठीक है, तो अब हम पैटर्न प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, सो वो पैटर्न जो प्रिंट करना चाहते हैं इसमें थोड़ी सी वेरिएशन चाहते हैं हम, इसमें चाहते हैं कि वो दोनों जो स्मॉल लेटर्स में कैपिटल लेटर्स हो। सो हमने इस तरीके से किया, और अब हम प्रोग्राम अपना कैसा चाहते हैं कि पहले तो वो स्मॉल लेटर्स हो पहली लाइन पे, फिर नेक्स्ट लाइन में वो कैपिटल लेटर्स हो इस तरीके का, फिर वो स्मॉल लेटर्स हो सी, फिर वो कैपिटल लेटर्स हो फिर से। ठीक है, इस तरीके का प्रोग्राम हम ठीक है चाहते हैं, तो हम इसी सेम प्रोग्राम में हम बस एक कंडीशन लगा देंगे, जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड बॉडी ऑफ इनर लूप में ही। सो बस हम यहाँ पे लगा देंगे इफ आर, ठीक है, परसेंटेज टू इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जो आर आफ्टर लूप की वैल्यू काउंट हो रही है वो से, ठीक है, अगर वो 0 होती है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट है सेम हम वैसे ही कर रहे हैं परसेंटेज 3C, और यहाँ पे हम आर की वैल्यूज को प्रिंट कर देंगे R+16, यानी आउटर लूप की वैल्यूज को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे ये कंडीशन रखता है, ठीक है, एल्स एल्स हम एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स मतलब मैंने बताया था कि अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तो एल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, विच मीन्स R%2 इज जस्ट इवन नंबर रोज। मैंने हॉरिजॉन्टल को रोज कहा था, और मैंने कहा था कि आर की वैल्यूज यानी आउटर लूप की वैल्यूज की शो करती है, रोज में वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, R%2 मीन्स परसेंटेज इज मॉडुलस रिमाइंडर, विच मीन इट गिव्स यू अ रिमाइंडर। अगर हम रोज को डिवाइड करके, यानी अगर इवन रोज आती है तो उसमें हमारी वैल्यू स्मॉल लेटर्स में रहेगी। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है यानी ऑड नंबर रोज, ठीक है, ऑड नंबर रोज यानी हमारी कंडीशन पहली वाली ट्रू रहती है, इसका पहली वाली फॉल्स रहती है, तो ऑड नंबर रोज, और इसमें हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, कैपिटल लेटर्स। ठीक है, बाकी सब चीज सेम है। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ रोज इस बार हम इस बार 10 ले लेते हैं, 10, और फिर देखते हैं क्या पैटर्न आता है। तो हम देख सकते हैं कि हम जो यहाँ पे हमने जो पैटर्न लिखा था ऊपर, ए ए ए एंड बी बी बी, सो
फर्स्ट यानी फर्स्ट रो दैट इज ऑड रो में हमारे स्मॉल लेटर्स प्रिंट हो रहे हैं, एंड सेकंड रो विच इज इवन रो इसमें हमारे कैपिटल लेटर्स। फिर थर्ड रो यानी ऑड रो है उसमें हमारे क्या हो रहे हैं, स्मॉल लेटर्स प्रिंट हो रहे हैं, एंड फोर्थ जो इवन रो है उसमें कैपिटल लेटर्स। तो ये एक अल्टरनेट तरीके से चलता रहा है जैसे हम पैटर्न चाहते हैं। ठीक है, सो ये हमारा पैटर्न हो गया। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैटर्न कि हम किस तरीके का पैटर्न चाहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पैटर्न चाहते हैं कुछ इस तरीके का स्टार। ठीक है, ये पैटर्न का पार्ट है। तो ये स्टार, देन स्टार, थ्री, थोड़ा स्पेस, थ्री, फोर एंड फाइव। ठीक है, इन नेक्स्ट लाइन स्टार्टेड विद अ स्टार, देन इट, फिर आपके पास लेटर्स आने चाहिए ए बी सी, देन अगेन से स्टार, फिर हम नेक्स्ट लाइन पे मूव किए स्टार, फिर हमारे टी ई एफ, देन फिर हमारे स्टार। ठीक है, फिर हमारी नेक्स्ट लाइन में जी, फिर एच, फिर आई, फिर हमारे स्टार, और उसके बाद हमारे फिर से इस तरीके का पैटर्न आना चाहिए। ठीक है, सो ये हमारा एक पैटर्न है और इस पैटर्न को हम बनाना चाहते हैं। आप देखते हैं कि इस पैटर्न को हम कैसे बनाते हैं। सेम हमें लेटर्स प्रिंट करना है और स्टार प्रिंट करना है, बट थोड़ा सा इसका पैटर्न यू नो इंट्रीगिंग है एंड कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, हमने लूप लगाया है और हम वही सब सेम चीजें कर रहे हैं। ठीक है, बस यहाँ पे भी हम कंडीशंस लगाएंगे इफ, बट यहाँ पे अब हम एक चीज कर देंगे, क्या है, सी इज इक्वल टू वन एंड सी इज इक्वल टू वन। ये हमारा और ऑपरेटर है, जैसे मैंने आपको बताया था वेरी फंडामेंटल से रिलेटेड टू सी की और ऑपरेटर है। ठीक है, इसमें हमारी एक भी वैल्यू ट्रू होती है तो ये आंसर ट्रू दे देते हैं। सो आर इज इक्वल टू वन, फिर से और सी इज इक्वल टू एन एंड आर इज इक्वल टू एन। तो अगर ये एक भी कंडीशन हमारी ट्रू रहती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ स्टार प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम स्टार प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा लूप था, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये आपकी फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मीन्स outer loop which is r value, first column is c outer inner loop value, and then the last row again r value, and last column which is c value। तो उसमें हमारा स्टार आना चाहिए जैसा कि आप प्रोग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, लास्ट रो एंड लास्ट। ठीक है, उसके बाद अगर इस कंडीशन को छोड़ के इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो स्टार प्रिंट होगा, और अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है फिर उसकी जगह पे हम एक बस परसेंटेज सी, इस पर हम सी लगा के सी एच प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अब सी एच क्या है कि हमें स्टार्टिंग में इसको एक करेक्टर लेना पड़ेगा, करेक्टर वेरिएबल हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, सी एच ए आर करेक्टर, जिसे हमने सी एच नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, और उसको ए कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर से एल्स प्रिंट एफ में आ जाते हैं जहाँ पे हमने किया था कि सी एच प्लस प्लस को आप प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारी मिडल रोज एंड कॉलम्स है, मिडल रोज एंड कॉलम्स एक्सेप्ट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम, तो ये मिडल रोज एंड कॉलम्स है। इनमें हमारा जो होगा वो सी एच प्लस प्लस प्रिंट होगा। ठीक है, और एक और कंडीशन लगा देते हैं, अगर सी एच हमारा जेड तक खत्म हो जाता है, इफ सी एच इज इक्वल टू जेड, तो हमारा सी एच फिर से ए से शुरू होगा। बस ये करना है, प्रिंट प्रिंट है, प्रिंट है, और हमारा ये रहता है तो हमारा सी एच फिर से प्रिंट नहीं करना है हमें, फिर से शुरू होगा ए से। बस इसको इस तरह ऐड कर देना है, और यहाँ से हमारा आउटर लूप खत्म हो गया, और आउटर लूप में फिर से ऑफकोर्स नई लाइन आएगी, नई लाइन प्रिंट करेंगे।
तो हमारे इसमें दो चेंजेस रहे। एक तो हमने सी एच की वैल्यू ग्रेटर देन जेड, देन वी प्रिंटिंग सी एच दैट स्टार्ट फ्रॉम सी एच इज इक्वल्स टू ए। एंड अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। ठीक है, हम इसे एग्जीक्यूट कर, हमने यहाँ पे रोज एंटर किए 5। सो हम जो करना चाह रहे थे या जो पैटर्न हम प्रिंट करना चाह रहे थे वो हो गया। यहाँ पे स्टार है, एबीसी और बीच में एबीसीडी है, जीएचआई है। सो ये इस तरीके का कुछ प्रोग्राम हमारा बन के आ गया है। सो इसी तरह के काफ़ी पैटर्न्स हमारे पास होते हैं और हम बनाते हैं। ठीक है, अब हमारा ये लेक्चर फिनिश्ड हो गया। पैटर्न से रिलेटेड बहुत सारे आपके पास पैटर्न्स हैं। ठीक है, सो thank you for everyone for paying attention to these lectures, and stay tuned for more updates. Follow PKR Technical Institute.